Morning students, today I am going to start next paragraph. So look at the book. Boys have generally excellent appetite. Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for 3 months. At last they got so various and wild with hunger that one boy who was tall for his age and had not been used to that sort of thing, that one boy who was tall for his age and had not been used to that sort of things, for his father and kept a small cook shop, hinted darkly to his companions. Night happened to eat the boy who slept next to him, who happened to be a weakly youth of tender age. He had a wild, hungry eyes, and they believed him. A council was held. Lots were cast who should walk up to the master after support that evening and ask for more, and it fell to Oliver Twist. The evening arrived. The boys took their places. The master, in his cook's uniform, astonished himself at the cooper. His assistants ranged themselves behind him. The gruel were stormed out. The gruel disappeared. The boys whispered to each other and winked at Oliver, while his next neighbors knew him. Child as he was desperate with hunger and reckless with misery. He rose from the table and, advancing to the master, basin and spoon in hand, said, somewhat alarmed at his own courage, "Please, sir, I won't come more." Students, now I am going to start English explain. Here, as you know, their students are generally more appetite. They feel a lot of hunger. In this habit, Oliver Twist and his companions suffered to the many sadness of so the starvation for near about 3 months, and at last they got a various different and wild with hunger, that one boy who was tall as their age, he had not been used to these sort things, which is kept by her fathers in their cook shop, where they make the foods, hinted darkly to his companions. Slowly and mutely
he hint to their companion that unless he had another pot for gruel per day, he was afraid he might some night happen to eat the boy who was slept next to the Oliver, who happened to be a weakly youth of their proper age. He had a lot of deep hunger, and his eyes saw such hunger, and they believed on him. A council was held, lot were cost where should walk up to their master after the eating the food of that evening, ask more, and Oliver Twist fell. And when evening came, the boys take their proper place, and the master who is in cook's uniform, that take their place at the upper, and he take the assistants ranges of their behind him. The gruel were now served out, and the gruel is finished there, and the boys whispered to each other that Winkle at the Oliver Twist, while the next neighbor is nude to them. The child, as he was desperate, means so feel energyless with hunger and reckless carelessness. With this poor condition, he rose from the table, and advancing to their master, forward to the master, basin and spoon in his hand, and said, somewhat signal given to me, take to me at this proper own courage. Please, sir, I want some more. So, students, first of all, I am going to start the Hindi explain. Before it, write the Hindi meanings of the hard words. Appetite means भूख होता है. Tortures means यातनाएं, पीड़ा. Slow means धीरे धीरे. Starvation means भूखमरी. Voracious means भूखड़, ज़्यादा खाने वाला. हंगर मीन्स भूख. वेसिन मीन्स प्याला, जिसको हम कटोरा भी कह सकते हैं. ग्रुएल मीन्स दलिया. टेंडर मीन्स नाजुक. अराइव्ड मतलब हो गई या पहुंची. कॉपर मीन्स धुलाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला बर्तन. असिस्टेंट्स मतलब उसके सहायक. विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना.
न्यूड मतलब उकसाया, विंक्ड मतलब संकेत करना, डिस्परेट मीन्स हताश, एडवांसिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ाना। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जो लड़कों की या छोटे बच्चों की यह आदत होती है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसी आदत की वजह से ओलिवर ट्विस्ट और उसके जो साथी थे वे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा और यातना को सह रहे थे, क्योंकि पिछले 3 महीने से वो धीरे धीरे भूखमरी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनको खाने के लिए भोजन पूरा नहीं मिलता था, इसलिए वे बहुत ज़्यादा भूखड़ से हो गए थे। मतलब उनको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, वो ज़्यादा खाना चाह रहे थे। और वाइल्ड विथ हंगर, और ये भूख की वजह से उनका जो भूख थी, इस भूख की वजह से उनके खाने की जो चाह थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। दैट वन बॉय, जिससे एक लड़का जो कि अपने एज के, अपनी उम्र के हिसाब से लंबा था, उसने जो है कुछ छोटी वस्तुएं उसने लिया हुआ था, और वे छोटी वस्तुएं वह अपने पिताजी के छोटे से कुक वाली शॉप से लिया था। छोटे छोटे बर्तनों को हिंटेड डार्कली टू हिज कंपेनियन, वह धीरे से अपने साथियों को संकेत करता है, बताता है दैट अनलेस ही हैड अनदर बेसिन, कि उसके पास एक दूसरा भी प्याला है। बेसिन मतलब प्याला, कटोरा, जो कि ग्रुवेल पर डे, जिसमें वह दूसरे कटोरे में वह प्रतिदिन दलिया लेता है। एंड ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वह क्या था, डर रहा था। ही माइट सम नाइट हैपन टू ईट द बॉय हु स्लेप्ट नेक्स्ट टू हिम, क्योंकि कुछ रात को जो उसके पास लड़का सोया था वह बहुत कम खाया था। हु हैपन टू बी अ वीकली यूथ ऑफ टेंडर एज, और कम खाने की वजह से, भोजन पर्याप्त न मिलने की वजह से वह छोटी सी अपनी नाजुक उम्र में ही जो है बहुत कमज़ोर हो गया था। ही हैड अ वाइल्ड हंग्री आइज, और उसकी आँखें बिल्कुल इस भूख को जो है प्रदर्शित कर रही थी। एंड दे बिलीव्ड हिम, ऐसा लोग विश्वास कर रहे थे, ऐसा लोगों को विश्वास देखकर हो रहा था कि उसकी जो आँखें हैं वह बता रही हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है। और काउंसिल वॉज हेल्ड, एक जो है सभा आयोजित की गई, जहाँ पर कॉस्ट शुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सफर दैट, जहाँ पर जो है मालिक को भोजन करने के बाद जो है दैट इवनिंग, उसी शाम को भोजन के बाद वह अपने मालिक के साथ कुछ मीटिंग जो है सभा करने का उन लोगों ने ठाना। एंड आस्क फॉर मोर, और कुछ वे अधिक उस अपने मास्टर से, अपने मालिक से जानना चाहते थे। एंड फेल टू ओलिवर ट्विस्ट, ऐसा ओलिवर ट्विस्ट को लगा कि आज शाम को ये मालिक से लोग कुछ कहने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं, उस पर कुछ मीटिंग होगी। शाम हुई, द इवनिंग अराइव्ड, शाम हो गई। द बॉयज टुक दियर प्लेसेस, सभी लड़के अपना अपना
स्थान ग्रहण कर लिए और जो मालिक था इन हिज कुक्स यूनिफॉर्म, जो अपने जो है खाना बनाने के ड्रेस में, अपने पोशाक में था, स्टोनिड हिमसेल्फ एट द ऊपर, वह अपने आप को जहाँ पे कढ़ाई, जहाँ पे बड़े बर्तन उसके थे खाना बनाने के, वहाँ पे वह पहुँच गया और हिज असिस्टेंट रेंज देमसेल्फ बिहाइंड ग्रूवेल वेयर सर्व्ड आउट, जहाँ से वह जो दलिया थी वहीं से वह बांटना शुरू करने वाला था, जहाँ से वह दलिया को बांटना शुरू करता था। द ग्रूवेल डिसअपीयर्ड, तो जब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, देखता है कि वहाँ से दलिया सब गायब है, द बॉयज विस्पर्ड, और बच्चे आपस में बात कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि, और ओलिवर की तरफ वे संकेत कर रहे थे जो कि नेक्स्ट नेबियोस न्यूडेड हिम, जो कि उसने ही उकसाया था, उसने ही अपने पड़ोसियों को उकसाया था। चाइल्ड एज ही वाज, जैसे कि वह बच्चा था ही वाज डिस्परेट विथ हंगर, और बच्चे होने की वजह से उसको भूख बहुत तेज़ लगी थी और अपने भूख की वजह से वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित था, और इसी लापरवाही की वजह से उसकी यह दुर्गति हुई थी। ऐसी बुरी स्थिति में वह पहुंचा था कि रोज फ्रॉम द टेबल, वो वहीं मेज से उठा, एंड एडवांसिंग टू द मास्टर, वह मालिक की तरफ बढ़ा और वह अपने हाथ में जो है कटोरा यानी बेसिन और चम्मच को लिया हुआ था। उसने कहा, सम व्हाट अलार्म्ड एट हिज ओन करेज, कुछ लोगों ने हमारी हिम्मत को जो है ललकारा था। प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, इसलिए मुझे और भी दलिया की आवश्यकता है। So in this way, students, your explain up to this paragraph is completed, and next paragraph starts from next video. So thank you to all. Have a nice day.